એન્જિનિયરિંગની પ્રેસ મીટમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. On behalf of Ajax Engineering, SBI Capital Markets, and my fellow BRLMs, I express my sincere gratitude to all of you for attending this event. I take this opportunity to introduce the distinguished members of the company. On the dais, we have with us today Mr. Subrata Saha, who's the Managing Director and CEO, and Mr. Tuhin Basu, who is the CFO. It gives me great pleasure to introduce to you Ajax Engineering. Ajax is the leading concrete equipment manufacturer with a comprehensive range of concrete equipment, services and solutions across the concrete application value chain, with a market share of 75% of the SLCM market in India for FY24. As of September 24, the company has developed over 141 concrete equipment variants catering to the concrete application value chain, and over the last 10 years, it has sold over 29,800 concrete equipment in India. As of September 30th, 2024, the company operates 4 assembling and manufacturing facilities in the state of Karnataka, each specializing in distinct product lines. The company is co-founded by Mr. Krishnaswamy Vijay, Executive Chairman and Whole-Time Director, the late Jacob John, and the late Anil Kumar Singh. The company's shareholders also include Kedara Capital, whose expertise and guidance has contributed to the formation of a robust capital base, positioning the company for continued growth and success in its operations. The company has demonstrated a track record of delivering growth in revenue, margins and return. The company proposes to open its bid offer on Monday, February 10th, 2025. The offer for sale is up to 20,180,446 equity shares of face value ₹1 per share. The price band is fixed from ₹599 to ₹629. This brings the deal size up to approximately ₹1,270 crores at the upper price band. The bid offer closes on Wednesday, February 12, 2025 for all bidders. The minimum bid lot is 23 equity shares and in multiples of 23 equity shares thereafter. I would now like to invite the Ajax management to further address the gathering here. Thank you. थैंक यू शिवानी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं कि आप चाहेंगे मैं हिंदी, इंग्लिश, किस भाषा में बात करूं? क्योंकि माफी चाहूंगा, मैं गुजराती में शिवानी की तरह बात नहीं कर पाऊंगा. हिंदी. ओके. आप सभी के लिए अगर हिंदी कंफर्टेबल है तो मैं स्विच बिटवीन हिंदी इंग्लिश करके ही इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करूं. ठीक है जी? थैंक यू. एजैक्स इंजीनियरिंग कंपनी 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी. इसकी नींव 3 टेक्नोक्रेट फाउंडर्स ने रखी थी और ये तीनों लोग उस टाइम L&T में काम किया करते थे एजैक्स इंजीनियरिंग को फाउंड करने से पहले. उनमें से 2 जिनके बारे में शिवानी ने बताया भी था वो चल बसे थे. आज हमारे साथ यहां पर तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं मिस्टर कृष्णस्वामी विजय, उन्होंने पिछले 33 साल को इस कंपनी में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो मशीन आप उस तरफ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर. उनको श्रेय जाता है कि इस मशीन को भारत में लाने का और कंक्रीट इक्विपमेंट की मैकेनाइजेशन के अंदर एजैक्स को एक अग्रणी स्थान प्राप्त कराने के लिए. और इसका श्रेय भी जाता है कि जिस तरह की डिजाइन है, जिस तरह का इसका इंजीनियरिंग है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी है, रिलायबिलिटी है, क्वालिटी है, जो इतने सारे सालों में 3 दशकों के में एक परफेक्शन इस प्रोडक्ट के अंदर आया है. कस्टमर इसको क्यों पसंद करते हैं, उसका सिंपल रीजन है इसकी प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और रीसेल वैल्यू सबसे बेहतरीन है कंपटीशन के मुताबिक. ये डेटा हम नहीं कहते हैं, हमारे कस्टमर्स कहते हैं. और अगर आप डेटा देखेंगे रीसेल वैल्यू का, अगर मशीन की लाइफ मान लीजिए अमूमन तौर पर 8 से 10 साल की होती है,
तो 4-5 साल के बाद अगर मशीन कोई बेचने जाता है तो कम से कम 50 से 55% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन मिल जाता है, विच इज एटलीस्ट 10 to 15% हायर देन द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। इनफैक्ट जब हम मार्केट में माल बेचते भी हैं तब हमें खुशी है ये बताते हुए कि हमारा माल प्रीमियम पर भी बिक जाता है। तो ये जो मशीन है ये छोटी मात्रा में कंक्रीट, फ्रीक्वेंट मात्रा में कंक्रीट और 4x4 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के तहत जाया करता है, जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन सेट इज वेरी वाइड, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर के अंदर। एक और चीज बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस में वन ऑफ द थिंग्स दैट प्रोमोटर्स ने शुरू से ही डिसाइड किया था कि एसेट लाइट लीन बिजनेस मॉडल रखेंगे। और एसेट लाइट लीन बिजनेस मॉडल रखने के साथ हुआ क्या कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रही, रिटर्न मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग रहे, और बीच में जब कोविड आया भी, जब पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर डिफिकल्टीज आई, हमारा वॉल्यूम गिरा, रेवेन्यूज गिरे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी प्रॉफिटेबल रही और कैश फ्लो पॉजिटिव रही। और जब कंपनी का बिजनेस ऊपर चला, गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेंडिचर 2022 के बाद वापस कंपनी ने बहुत तेजी के साथ अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, और जो कंपनी 1992 में शुरू हुई थी, 0 से लेकर 330 करोड़ का आंकड़ा फासला जो तय किया 1992 से 2014 तक, इट इज अ स्टोरी ऑफ कन्विक्शन, इट इज अ स्टोरी ऑफ करेज, इट इज अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस ऑफ द प्रोमोटर्स हु स्टक इट आउट डिस्पाइट द फैक्ट दैट उस टाइम मैकेनाइजेशन का दौर नहीं था। और आज भी यह अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि आज भी भारतवर्ष के अंदर बहुत मात्रा में मैनुअल मिक्सर्स भी यूज होते हैं, और मैनुअल मेथड से